नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खम पे एक नज़र डालते हैं। सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत, अमेरिका फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी हिंदुस्तान की हिमायत कर दी। कैलिफोर्निया में मंदिर में हमले और तोड़फोड़ की हिंदुस्तान ने की मजम्मत, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी की शिकस्त फाश यकीनी, उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा बीजेपी की पॉलिसियों के पास कश्मीर में हालात खराब हुए हैं। राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा में इंतखाबी जलसे से अमित शाह का खिताब। किसानों की तमाम फसलों को MSP पर खरीदने का किया दावा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नीयत में खोट है, केजरीवाल का इल्जाम। कहा कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात गैर कानूनी तौर पर कराए जा रहे हैं। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनीत के मामले में इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। यह खबर उस वक्त सामने आई जब हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 69वें इजलास में शिरकत की। केयर स्टारमर ने कहा कि UNSC को एक ज़्यादा नुमाइंदगी करने वाला इदारा बनने के लिए तब्दीली की ज़रूरत है, जो काम करने के लिए तैयार हो और सियासी तौर पर गैर मौसिन ना हो। इस मौके पर इन्होंने ये भी कहा कि UNSC में किसी अफ्रीकी मुल्क, ब्राज़ील, हिंदुस्तान, जापान और जर्मनी को भी शामिल करना चाहिए। It matters to the British people. My government was elected to change Britain, to deliver national missions on higher growth, safer streets, cleaner energy, more opportunity, and a healthier society. But behind every one of these missions sits another insight, something that used to be unspoken, but now needs to be said, that we recognise that our success in Britain can never be separated from events beyond our shores. Global challenges rebound on us at home, and to grapple only with the effects of war, poverty, climate change, pandemics, or irregular migration when they arrive on our doorstep is to set ourselves up to fail. We must work with others to solve these problems at root, to tackle the causes. Britain is stronger when we do so. So we are changing our approach on the global stage too. My message today is this: we are returning the UK to responsible global leadership, because I think the international system can be better. We need it to be better. People talk about an age of polarization, impunity, instability, an unraveling of the UN Charter. And I fear that a sense of fatalism has taken hold. But our task is to say, no, we won't accept this slide into greater and greater conflict, instability, and injustice. Instead, we will do all we can to change it. जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की वकालत के जवाब में हिंदुस्तान ने दो टोक अंदाज में कहा कि पहले इस्तेमाल करने की हिंदुस्तान की ना तो पॉलिसी है और ना ही हिंदुस्तान ऐसा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी बराए मगरिब तनमिया लॉल ने कहा कि जौहरी हथियारों के तई हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है और इस सिलसिले में हिंदुस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। Nuclear weapons continue to pose the gravest danger to humanity. India remains firmly committed to the goal of universal, non-discriminatory, and verifiable nuclear disarmament within a specified time frame. India's proposal for a step-by-step approach for the total elimination of nuclear weapons is contained in our working paper that was submitted to the Conference of Disarmament in 2007. It calls on the CD to negotiate a comprehensive nuclear weapons convention. As the world's single multilateral disarmament negotiating forum, the Conference on Disarmament needs political will to agree on a program of work and to commence negotiations on legally binding instruments on the core items on its agenda. Without prejudice to the priority that we attach to disarmament, India has supported the immediate commencement of negotiations in the CD on a fissile material cut-off treaty,
on the basis of CD/1299 and the mandate contained therein. It remains the most suitable basis for negotiations. Mr. President, India is a responsible nuclear weapon state and, as per its nuclear doctrine, is committed to maintain credible minimum deterrence with the posture of no first use and non-use against non-nuclear weapon state. In line with the emphasis of SSOD-1 on promoting expertise in disarmament and our commitment to promote and advance disarmament education, India hosts a fully funded 3-week annual disarmament and international security fellowship program, and every year around 25 to 30 diplomats from partner countries avail of this program. At the UNGA, India submits 2 annual resolutions, one a long-standing call for negotiations on an international, universal and binding convention on prohibition of the use of nuclear weapons, and another on reducing the nuclear danger. India has been advocating steps towards reducing the unacceptable risk of unintentional and accidental use of nuclear weapons and reviewing their role at the national level. Mr. President, progress towards the goal of nuclear disarmament requires a climate of mutual trust and confidence in the international community. India stands ready to work with all countries towards the objective of creating a world free of nuclear weapons. Thank you. हिंदुस्तान ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में स्वामीनारायण मंदिर में मंगल की रात हुए हमले और तोड़फोड़ की मजम्मत की और मुकामी इंतजामिया से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में वाक़ स्वामीनारायण मंदिर में 24 सितंबर की रात को होने वाले हमले, तोड़फोड़ और बर्बरियत की सख्त मजम्मत करता है। पोस्ट में कहा गया है कि कौंसलेट जनरल ने मामला मुकामी हुकाम के साथ उठाया है और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खराब हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि 2 मरहलों की पोलिंग में अवाम ने बीजेपी को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है। शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो, तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है, आपको काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना। अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। मिलिटेंसी पे आपको आरोप लगाए जाते हैं कि एमसी कांग्रेस जो है मिलिटेंसी की जिम्मेदार है। ना पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहे हैं? ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। मरकजी दाखिला अमित शाह ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में एक जलसेआम से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर शदीद हमला किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी एमएसपी के हवाले से किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे
वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी। जयपुर में हिंदू रूहानी और खिदमत मेले में खिताब करते हुए नायब सर जगदीप धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तानी आइन का दिबाचा सनातन धर्म के जौहर की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे आइन की अक़दार सनातन धर्म की बहुत अच्छी तारीफ करती है। सनातन धर्म तमहीद में शामिल है। हमारी आइनी अक़दार सनातन धर्म में देखी जा सकती हैं। उनका कहना था कि सनातन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। हमारे संविधान के मूल्य बेखूबी सनातन धर्म को परिभाषित करते हैं। प्रस्तावना में सनातन धर्म निहित है। Our constitutional values emanate from Sanatan Dharma. The source of our constitutional values can be seen in Sanatan Dharma. The preamble of the Indian Constitution reflects a sense of Sanatan Dharma. Sanatan is all-inclusive. Sanatan is the only way for humanity to move forward. ये सनातन की तो देन है कि वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं और हमने तो इसको दुनिया में प्रसार कर दिया है और दुनिया ने ग्रहण कर लिया है। जब भारत ने G20 का आयोजन किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ग्लोबली acclaimed G20, the motto was One Earth, One Family, One Future. उन्होंने भारत में आकर देखा, this is ground reality here. The world is taking it, is receiving it. As a matter of fact, the world is very keen to adopt the philosophy of Bharat. ये आयोजन निश्चित ही प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। ये आयोजन सामयिक है। I can tell you friends, this program has great contemporaneous relevance. हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, जिनका समाधान विश्व को भारत ही दे सकता है। क्लाइमेट चेंज इज एग्जिस्टेंशियल चैलेंज। हमारे पास रहने का दूसरा प्लेनेट नहीं है धरती के अलावा। और हमारी संस्कृति में झांकिए, सनातन की फिलॉसफी में जाइए, गहराई से अध्ययन कीजिए, आपको पता लगेगा हम तो कभी भी क्लाइमेट चेंज को आने नहीं देते। यदि दुनिया हमारी बात मानती थी और यहां रहने वाले कुछ लोग हमारी बात मानते तो भी हम ऐसा नहीं होने देते। आज के दिन भारत इज टेकिंग ग्रेट लीड, बहुत बड़ी लीड ले रहा है।
हमारे दर्शन दुनिया अडॉप्ट सुप्रीम कोर्ट ने रजाकाराना असातिज़ा की भर्ती से मुताल्लिक़ कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म को आज मुस्तरद करते हुए कहा कि हाईकोर्ट सिर्फ चंद खतूत की बुनियाद पर बगैर कोई वजह बताए सीबीआई से इंक्वायरी कराने का हुक्म देने के इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की डिवीजन बेंच ने मुतल्लिक़ा फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ये हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा इलाक़ाई इंतज़ामिया में रजाकाराना असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए मुबैना तौर पर बगैर भर्ती के किसी अमल की पैरवी के बगैर वज़ीर इंचार्ज को लिखे गए खतूत की CBI के ज़रिए SIT से जाँच करने के हुक्म को मनसूख करने का फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना की जानिब से कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर कराया जा रहा है, जो कि हैरान कुन है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ऐवान की मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ मेयर को है। मेयर के अलावा किसी और को ऐवान का इजलास बुलाने का हक नहीं है। ऐवान का इजलास सिर्फ मेयर ही बुला सकती हैं और वो इजलास की सदारत भी करेंगी। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके ऐवान का इजलास तलब किया और एक IAS ऑफिसर को इसकी सदारत के लिए नामजद किया है। हम जमहूरियत में रहते हैं, इसके अलावा कानून में लिखा है जब भी ऐवान बुलाया जाएगा इसे 72 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अगर कोई काउंसलर बाहर गया हो या दस्तयाब ना हो तो उसे वक्त पर पहुंचने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लगता है कि उनकी नीयत में कोई खामी है। ऐसा लगता है कि वो इंतखाबात में कुछ गलत करने का मंसूबा बना रहे हैं। इस वजह से वो किसी भी तरीके से इलेक्शन कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान व मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यूपी में बड़े पैमाने पर गांजे का इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना था कि लोग डंके की चोट पर गांजा पी रहे हैं और हुकूमत इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। गांजा अवैध है। अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे वो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं। फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको मान्यता ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के साहपाऊ इलाके में पुलिस ने एक भयानक वाक़े का इंकशाफ किया है, जिसमें स्कूल की तरक्की के लिए एक 11 साल बच्चे की बलि दी गई। साहपाऊ पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क में तोहम परस्ती की इंतहा यह है कि एक स्कूल की तरक्की के लिए इंसानी बलि जैसे मकरू अमल का सहारा लिया गया, जहाँ बच्चों को खराफात और जहालत से दूर रहने का सबक दिया जाता है। वहीं इस स्कूल के जिम्मेदार खुद ही इस गैर इंसानी अमल में मुलविस पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या रसगांव गाँव में वाक़ DL पब्लिक स्कूल से मुताल्लिक़ है, जहाँ दूसरी जमात के तालिब इल्म करतारत किशवाहा का कत्ल गला दबाकर किया गया था। बच्चे की लाश स्कूल के मैनेजर की गाड़ी से बरामद की गई थी। इसलिए हम यहाँ से गए, मैं गया बाइक लेकर के, मुझे बताया सादाबाद है। मैं जैसे ही स्कूल में पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं सादाबाद हूँ, तो मैंने सारे बुखार आ गया है, सादाबाद होंगे। मैं सादाबाद पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं आगरा हूँ। मैं टेढ़ी बगिया पर देखा, एक हॉस्पिटल के पास में बैक साइड दूसरे साइड पर गाड़ी खड़ी थी। जब मैंने अपनी बाइक छोड़ के वहाँ देखा तो उसमें डेड बॉडी धरी हुई थी, गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये तंत्र विद्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है ये तंत्र विद्या? तो वो जाने उन्होंने क्यों नर्सिंग बलि चढ़ा दी उसकी, ये तो वो जाने। तंत्र विद्या क्या, तांत्रिक विद्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे बेटे की तो नर्सिंग बलि चढ़ा दी है। ये मीडिया दे रही आ रही है। वैसे मीडिया ने, पुलिस ने भी हमारी हेल्प की है पूरी,
थोड़ी सी पूरी हेल्प कर रही है, मीडिया भी हेल्प कर रही है। जैसे अभी आज हम देखा कि तांत्रिक विद्या से उसकी नर्सिंग बलि चढ़ा दी उन लोगों ने कॉलेज को बढ़ाने के माध्यम से। कनाडा के साबिक वजीर और बीजेपी के रुकन असम्बली मनीरत्ना पर एक खातून ने संगीन इल्जाम आयद किया है। उसका कहना है कि मनीरत्ना ने इसे अपने जाल में फंसाया और कई बार इसमतदरी की। खातून का कहना है कि बीजेपी रुकन असम्बली ने कर्नाटक रियासती असम्बली बिल्डिंग, असम्बली और सरकारी कार के अंदर इसे अपनी हवस का शिकार बनाया। खातून के जरिए बीजेपी रुकन असम्बली मनीरत्ना पर यह इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद रियासत में सियासी हलचल बढ़ गई है। मुतासरा खातून को यहाँ तक कहना पड़ा कि मनीरत्ना ने जिनाकारी की वीडियो भी रिकॉर्ड की है और इसने धमकी दी है कि अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो संगीन नतायज भुगतने होंगे। कर्नाटक हुकूमत ने इन इल्ज़ामात पर SIT जांच का हुक्म सादर किया है। मनीरत्ना फिलहाल एक दीगर केस में SIT की हिरासत में है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ख़त्म किए जाने की गर्दिश करने वाली खबरों के दरमियान हुकूमत का ताज़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने कहा कि बॉन्ड की अगली किस्त का इजरा मार्केट की तलब और हालात की बुनियाद पर किया जाएगा। अगर मार्केट में इसकी मांग होगी तो हुकूमत गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी करेगी। हिंदू बिजनेस लॉइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त को जारी करने से पहले मार्केट की ज़रूरियात और हालात का जायज़ा लेगी। रिपोर्ट में वज़ारत ख़जाना की एक ज़राए के हवाले से कहा गया है कि यह कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है और इसमें ख़र्च लेने की लागत सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से हुकूमत मार्केट की तलब और माली हालत का जायज़ा लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करेगी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खों पे एक और नज़र। सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत, अमेरिका फ्रांस के बाद अब बरतानिया ने भी हिंदुस्तान की हिमायत कर दी। कैलिफोर्निया में मंदिर में हमले और तोड़फोड़ की हिंदुस्तान ने की मजम्मत, हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी की शिकस्त फाश यकीनी, उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा बीजेपी की पॉलिसियों के बाद कश्मीर में हालात खराब हुए हैं। राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हरियाणा में इंतखाबी जलसे से अमित शाह का खिताब। किसानों की तमाम फसलों को MSP पर खरीदने का किया दावा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नीयत में खोट है, केजरीवाल का इल्जाम। कहा कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात गैर कानूनी तौर पर कराए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।